BUM scale 2 interview, sir. Scale 2 interview, Bank of Maharashtra. Yes, sir. Good. Please, which date is your interview? 4th of November. You have paid 410 or 610? 610, sir. 610. Okay. Have I given you second date also for you? Yes, sir. Actually, my interview is also for RRB scale 2. Acha, you want to take this one? Yeah. This one for BUM and other one for RRB. Acha, RRB, which date have I given you? You have given me 2nd of November. My interview is on 3rd of November. Very good. So please tell me about yourself. My name is Abhishek Jain. I am from Narnaul, Haryana. I did my graduation in BTech Civil Engineering in 2018. Then I joined Bank of Maharashtra as a PO in 2019 in Mumbai. I have been leading a deposit portfolio of around 500 crore rupees there. I've also been nominated by my BM as a best employee in customer service at zonal level. I've also cleared JIB. So you are in scale 1 now? Actually, I've left the bank last year to prepare for RBI. Acha, you have appeared for interview with me last year also? No, sir. No. Very good. Why did you leave that job? You were scale 1 officer or clerk? No, sir. Scale 1 officer. Why did you leave that job? You wanted to go for RBI? Yes, sir. मैं RBI के लिए प्रिपेयर करना चाहता इसलिए ये डिसीजन लिया छोड़ने का बैंक. Abhi, again you are coming to Bank of Maharashtra interview? Yes, sir. They will certainly ask you questions. Why did you leave it then? And how are you going to satisfy them about your coming back to them? एक्चुअली मेरा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था बैंक में वो बहुत अच्छा था. मेरे जो बीएम थे वो एजीएम थे. उन्होंने मुझे एज ए नॉमिनेट किया था बैंक में मुंबई ब्रांच में एज ए बेस्ट कस्टमर सर्विस एज एम्प्लॉई. तो मैं बस उस टाइम पे मैं वो सब ठीक है. अभी बता दो क्यों आपको आरबीआई में सक्सेस नहीं हुआ. कितना बार आपने आरबीआई ट्राई किया? एक्चुअली मैंने 2 बार ट्राई किया था आरबीआई. तो उन दोनों में मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया. एक बार मैंने बैंक की जॉब के साथ दिया था. फिर जब मैंने बैंक छोड़ा एक बार तब दिया था. तो उसके बाद सक्सेसफुल ना होने के बाद फिर थोड़ा सा मुझे मतलब मिस हुआ मेरी प्रीवियस लाइफ जो बैंक में थी मेरी. तो मुझे लगा कि थोड़ा एक बार मैं दोबारा उस टाइम दोबारा जाना चाहता हूँ और आरबीआई को एज ए फॉरगेटन पास्ट करके Have मैं you लीव कर. tried other banks also, Central Bank or other banks which came for नो recruitment? No, why? नो एक्चुअली अभी तक वो उनमें एलिजिबल नहीं था. मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आरआरबी 2 ही एग्जाम्स में एलिजिबल था मैं अभी तक. अच्छा, ठीक है. Good. Now, you were good in which aspect when you were scale 1 officer? जनरल बैंकिंग अबाउट डिपॉजिट्स एंड एफडीज लोकर्स. अच्छा. उसमें फायदा क्या है? हमको क्रेडिट ऑफिसर को चाहिए. I want people who are good in credit. एक्चुअली मैंने क्रेडिट के बारे में भी स्टडी करा है अभी रिसेंटली. तो मुझे इतना नॉलेज है कि क्रेडिट कैसे करना है, क्या करना है उसमें, कस्टमर को कैसे. पर मेन जो बात आती है बैंक में, वो आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, कस्टमर को आप कैसे अपने पास रख सकते हो. तो वो जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने डिपॉजिट पोर्टफोलियो में सीखी है कि मैं कस्टमर को कैसे खुश रख सकता हूँ, सर्विसेज अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ कस्टमर्स के लिए, कि मैं कैसे अपने एज पे जाके. आपका क्वेश्चन, what are the things you know, पूछने से you include advances also. ओके. If they ask you where have you worked, उधर में झूठ मत बोलना, उधर में सच बोल देना. That is banking, only deposits वगैरह. Otherwise, if they ask you in which areas you are competent, ऐसा पूछने से आप you include advances also, because they want mainly people for advances. हाँ एक्चुअली वो तो मैंने एडवांसेस बारे में पढ़ा, तो मैं मतलब इंक्लूड कर दूंगा, बोल दूंगा कि मैं एडवांसेस का भी पता है मुझे. That's what you have to say. Please tell me, what are the different types of loans that Bank of Maharashtra is giving nowadays? सर मेनली रिटेल लोन एंड कमर्शियल लोन्स. इन रिटेल वी हैव हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. एंड इन कमर्शियल लोन एमएसएमई लोन, जीएसटी लोन, स्वागतम लोन and takeover loans are also there.
Now, please tell me about any one product. Explain what are the things you will ask for from the customer, how will you process that, and what are the conditions you will put to see that the account goes well. Please tell me any one of these products. So I will start with Bank of Maharashtra Super Housing Loan. तो अच्छा, उसमें हम पहले बोलिए। हाँ, उसमें हम पहले कस्टमर से उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगेंगे। तो हम उससे पहले उसका सिविल चेक करेंगे कि उसके सिविल में क्या क्या लोन चल रहे हैं, कोई लोन डिफॉल्ट तो नहीं है। और फिर उसके बाद हम उससे उसका आईटीआर मांगेंगे। उससे पूछेंगे पहले कि वो प्रोफेशनल है या फिर सैलरीड है या फिर बिजनेसमैन है। तो उसके बेसिस पे हम उससे या तो उसका आईटीआर मांगेंगे या उसके कंपनी की बैलेंस शीट मांगेंगे, जो भी बेसिस पे। और उसके बाद हम डिडक्शन नॉर्म्स चेक करेंगे पहले तो, कि अगर उसने कहीं और से पहले लोन ले रखा है तो हमारा डिडक्शन नॉर्म जनरली 65% और 35% है, कि 35% से कम से हम उसका साइड में रखेंगे और 65% जो इनकम है उसकी नेट ग्रॉस इनकम है, तो उस पर ही हम उसको लोन दे सकते हैं 65% इनकम पे ही। और सेकेंडली, जब वो अगर एज हो जाए 75 ईयर्स अबव एज तक हम उसको दे नहीं सकते लोन, और टेन्योर भी 30 ईयर्स तक ही रहेगा मैक्सिमम। और हम्म, उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, वो म्यूनसिपल कमीशन के अंडर वो अप्रूव्ड है या नहीं है सब। हम्म, और उसके बाद हम्म, हम उसके बाद पूछेंगे हम कि अगर उसको समझ लीजिए 50 लाख का लोन चाहिए, तो उससे मार्जिन पूछेंगे हम, क्योंकि 70 लाख से बिलो के नीचे हमें 10% मार्जिन चाहिए, और 70 लाख से अबव हुआ तो 20% मार्जिन लगेगा उसके ऊपर, उसको पे करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे हम्म, उसका उतना बैलेंस है नहीं है मार्जिन पे करने के लिए। और जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर 3 ब्रदर्स हैं, तो फिर हम उसमें एनओसी मांगेंगे उनके ब्रदर से, और वो डिमार्केशन भी करवाएंगे हम्म। म्यूनसिपल कमीशन से। तो Supposing a borrower wants above 75 lakhs loan, यस and what is the margin you will ask for from him? सर, अबव 75 लैक्स एक्चुअली देर आर टू कैटेगरीज। हम उसको 10% मार्जिन में भी सकते हैं और 20% मार्जिन में। 20% मार्जिन में देंगे तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर उसको 10% मार्जिन में पे करना है तो उसको 15 BPS एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। बट यहाँ पर दिया है above 75 lakhs होने से 25% मार्जिन मांगेगा। अभी आपको दैट वेब आपका वेबसाइट में जाके देखने से यू आर सीइंग दैट इट ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है। एक्चुअली मेरे को मेरे जो फ्रेंड्स ने भेजा था मुझे, तो उसमें हाँ भी देखिए ना, ऑनलाइन हाँ में देखिए। हाँ, वो मेरे को शायद उन्होंने पुराना सर्कुलर भेज दिया जो मेरे पास था, आई थिंक ये शायद इशू है। ये पूरा देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं देख लूंगा। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स up to 75% of based on latest monthly income. For non-salaried, 75% of an average annual एनुअल income. Correct? हाँ सर। Very good. What is the processing fee? 0.25% सर। Very good. मैक्सिमम अप Point टू 25,000। maximum of? 25,000 रुपीज। Acha, very good. So what is the scheme for waiver of 3 EMIs? एक्चुअली उसमें ऐसा है कि अगर कस्टमर, अगर उसने 15 ईयर्स तक का लोन लिया, अगर वो Hmm, सेटिस्फैक्ट्री लोन पे कर रहा है 15 ईयर्स तक, मतलब लास्ट के अगर उसने पे करा, तो 3 मंथ्स का हम उसे वेवर कर देंगे ईएमआई। acha, acha, good. और अगर Very उसने प्री good. क्लोजर करा तो हम उसमें उसको पे नहीं करेंगे कुछ भी। Good. I think you are through with this. Now please tell me what is DPN? बिलो पोवर्टी, No, बीपीएल। no, 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 no. D यस for बट Delhi, P for Peter, N for Nagpur. DPN. ड्राइंग पावर, No, no. Demand promissory note. डिमांड प्रोफेशनल लोन, ओके ओके सर। ये सब टर्म्स आपको पता होना है. What are the terms used in banks? आपको if you can catch hold of some these materials of your own bank promotion test, उसको पढ़ लीजिए, आपको ठीक हो जाएगा. समझिए. और हमने दिया है ना इंडियन बैंक का लोन प्रोडक्ट प्रमोशन बुक, आपको पास भेजा नहीं भेजा? नहीं नहीं सर, नहीं भेजा। Why you have not taken it from me? नो एक्चुअली वो मैंने कल ही ज्वाइन किया था, तो फिर मे बी इसलिए जल्दी जल्दी में।
वो कुछ अच्छा, डिटेल्स मेरे पास थी नहीं, हाँ अवेलेबल थी नहीं। आई हैव नॉट गिवन। अच्छा, 1 मिनट, सॉरी। नहीं, नहीं, कोई नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट, हम वो भेज देगा, यू प्लीज गो थ्रू दैट। अभी नहीं, बाद में ओके, कर लो, अभी दे देगा। ठीक है, अच्छा कोई नहीं सर। हम्म, दे दिया। यस सर, रिसीव्ड, थैंक्स। यह क्रेडिट ऑफिसर मटेरियल्स में मिलेगा आपको। क्रेडिट ऑफिसर मटेरियल, क्रेडिट ऑफिसर मटेरियल आप डालने से आपको ऐसा आएगा। इसमें सी दिस मच हम दे रहे हूँ, एंड इसमें ये क्रेडिट ऑफिसर को क्लिक कर दीजिए, एंड इसका अंदर में ये है। आपको इसका अलावा नीचे दिस वन, दिस इज द इम्पोर्टेंट मटेरियल, प्री प्रमोशन मटेरियल। इसको पढ़ने से आपको बैंकिंग में अभी जो काम करने वाला उनको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे होगा, ये सब पता हो जाएगा। इधर में दिस इज गिवन फॉर इंडियन बैंक, ये छोड़ दीजिए। ओके, बट यू हाँ ये तो सी बिजनेस। ओनली अबाउट इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, this one is very important, and another one, ओके, this book is very important, Indian Bank FAQ। इसमें एक एक करके आप जा सकते हैं। क्रेडिट मॉनिटरिंग में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्रेडिट पॉलिसी में क्या क्वेश्चन आएगा, एनपीए मैनेजमेंट में क्या क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। फिर भी इसको आइसमपी लेके आप पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल नो अबाउट इट। प्लीज टेल मी व्हाट इज meant by balance sheet analysis, and what are the factors you will look into in analyzing a proposal? सर बैलेंस शीट एनालिसिस में हम उसके असेट्स और लायबिलिटीज चेक करेंगे। तो असेट और लायबिलिटीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स एंड शॉर्ट टर्म असेट्स। और लायबिलिटीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और जो लायबिलिटीज है उसमें शेयर होल्डर्स कैपिटल होगा, प्लस उसने कुछ एडवांस लिया होगा किसी कस्टमर से, या फिर क्रेडिटर्स होगा किसी, उसने कोई माल है उधार पे लिया हो, प्लस कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सब लाइबिलिटीज में जाएंगे। प्लस एसेट्स जो होंगे उसमें हमारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे, जैसे लैंड, मशीनरी और प्लांट कुछ भी, प्लस जो भी उसने कुछ स्टॉक है उसके पास, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा एसेट्स में। तो इस बेसिस पे हम उसके रेशियोज चेक करते हैं बेसिकली। जैसे हमारे पास करंट करंट रेशियो है, क्विक क्विक रेशियो है, लिवरेज रेशियो है, और डेट इक्विटी रेशियो है। तो इन रेशियो से हम चेक करते हैं कि जो कंपनी है उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो ठीक है नहीं है, मतलब वो अगर हमसे लोन लेगा तो हमारा इंटरेस्ट पे कर सकता है नहीं कर सकता ठीक टाइम पे। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, तो उसमें चेक करते हैं कि वो जो हमसे लोन ले रहा है तो वो उसके पास इतने एसेट्स हैं नहीं है, या प्रॉफिट इतना है नहीं है, प्रॉफिट कमा रहे हैं कि उससे हमारा जो लोन है वो रिपे हो जाए। तो Good, बेसिकली हम फाइनेंशियल चेक करते हैं उससे। good. And you must be able to tell what are the ideal ratios and all that. 1.33, what, वन ये वन सब, परसेंट ये सब पढ़ लो, पढ़ पढ़ के मन में रख लो। हाँ ओके। यस सर इधर बिल्कुल। में बहुत कुछ क्वेश्चन है जो हम पूछने से आप आंसर नहीं कर पाएंगे। हाँ व्हाट वो जो इज, मेन, हाँ हाँ, लीगल ऑडिट ये सब तो। या इलीगल ऑडिट सब आपको बोलने का नहीं आएगा अभी। हाँ पर मेरे को एसएम इतना पता है कि एसएमए अगर जैसे, अकाउंट, एसएमए हाँ सर, अकाउंट के बारे में आपको क्या जानते हैं? स्पेशल मेंशन अकाउंट। हाँ एक्चुअली अगर किसी कस्टमर ने हमसे लोन लिया हुआ है, तो अगर उसने 3 मंथ्स तक ईएमआई पे नहीं किया हुआ, तो 3 मंथ्स के बाद वो जो अकाउंट है वो एसएमए जीरो में चला जाएगा अप टू 30 डेज। फिर अगर 30 डेज के बाद भी उसने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया है, प्रिंसिपल पे नहीं किया, तो उसके बाद वो एसएमए वन में चला जाएगा। मोर मतलब वो 0 से 60 डेज स्टार्ट हो जाएगा अगर उसने 3 मंथ्स के बाद पे नहीं किया। और फिर अगर एसएमए टू में मतलब 90 डेज तक पे नहीं किया तो एसएमए टू में चला जाएगा वो लोन। फिर उसके बट बाद वो सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल एसेट्स, फिर ट्रू, लॉस। आपने जो बोला सही आंसर है, लेकिन बोलने का पहले आपने 90 डेज एक वर्ड बताया, वो तो रॉन्ग है। 90 एटी डेज नाइन इधर, डेज 89। नो नो, 90 डेज नहीं आएगा उधर, खाली अपने बोलना है इन अ लोन अकाउंट वेयर रीपेमेंट इज ड्यू and the date is within 0 to 30 days, it is SMA 0, 31 to 60 SMA 1, 61 to 90 90। SMA 2। ऐसा मपी बोलना है। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, उसका बारे में क्या दिया है उसको पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर दीजिए। ठीक। ठीक है, इतना ओके। मपी इतना डिटेल से जा रहा है, पूछ रहा है।
आपको प्रोविजंस का बारे में जानते हैं? लोन प्रोविजनिंग, यस सर, थोड़ा बहुत। पर कितना प्रोविजन होगा, सिक्योर्ड को कितना होगा, अनसिक्योर्ड को कितना होगा, ये प्रिपेयर कर लीजिए। हम तो ठीक है सर। दिया है, ये मटेरियल्स का अंदर में मिल जाएगा, नहीं होने से क्वेश्चंस रख के आप अपना कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र आदमी से पूछ लीजिए। इफ यू कैच होल्ड ऑफ सम बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन ट्रेनिंग मटेरियल, you please read that also, that will be more better, that will be briefly मिल जाएगा, समझ गए? हाँ मैं वो ले लूंगा सर, वो Very मटेरियल। good, very good, you can make it. Now can you tell me what is the deposit interest rate prevalent now in our bank? 6.5 आई थिंक सर। No, for which is 6.5? 1 year and above। 1 year and above 6.5. No, इसमें दिया है up to 1 year 6.5, 1 year 6.5। above 1 year 6.25, 6.25। yeah, and up to less than 2 crore. 2.7। Above 2 crore, I think they have different classification. डिफरेंट 2 crore to 10 crore, above 10 crore. अच्छा, थोड़ा ज्यादा होगा तो कम हो जाता है इंटरेस्ट। हाँ, अगर लोन मतलब अमाउंट हमने अगर ज्यादा डिपॉजिट किया तो 2 करोड़ Yeah. 10 करोड़ है, ये सब बाइफरकेशन। अच्छा अच्छा, आपको जानते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नॉन कॉलेबल डिपॉजिट होता है, नहीं होता है? एज पर्टिकुलर ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, पर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं SCSS इनमें है, पर वो भी नॉन कॉलेबल नहीं है, नो उसमें नो भी। नो, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट कभी सुना है इसका बारे में? हाँ मतलब पढ़ा है कि जिसको मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स। What is the recent change introduced by RBI in this regard? I have posted a video yesterday. आइडिया नहीं है सर एक्चुअली। नॉन कॉलेबल डिपॉजिट इतना दिन वो लोग बोलते थे that only up to say 15 lakhs they can give, above 15 lakhs they can give non callable deposit. अभी इसको तो अभी चेंज करा दिया that now it is 1 crore. मतलब नॉन कॉलेबल डिपॉजिट 1 करोड़ से अबव होगा। 1 crore हो गया, 1 crore हो गया। अभी देखिए लेटेस्ट वीडियो हमने डाला है, पता नहीं हमने रिलीज किया। एक मिनट, इधर दिया है फेडरल बैंक त्रिवेंद्रम, फेडरल बैंक कैंपस रिक्रूटमेंट, फेडरल बैंक क्लर्क, फेडरल बैंक त्रिवेंद्रम, फेडरल बैंक केरला, फेडरल बैंक RRB, फेडरल बैंक क्लर्क BOM scale 2, then IBPS RRB PO Haryana, then IBPS RRB IB Federal Bank Clerk. I have posted a video. I don't know where it has gone. 1 minute. Have I not posted it online? एक मिनट करो। ये सर आपका जो IBPS PO प्लस है ना, इसमें ही है, ऊपर ही आई थिंक। हाँ ये दिया आपका हाँ, यही है। ABPS IBPS RRB PO प्लस स्केल 2 है ना, ये लिखा है ना आपने, उसमें है वो, सबसे उसमें ऊपर है। ही। हाँ मिल गया मुझे सर वो। मिल गया। हाँ ये सर मिल गया। ये वाला क्यों हमने सेव नहीं किया? नॉट